Hello and welcome to Success Mantra digital platform. Today in this particular video lecture, we are here to have a discussion on Chola dynasty. This is one of the very prominent dynasty of medieval India. The early medieval India, you will trace this particular dynasty in the southern part of India, right? So today we are here to have a discussion on Chola dynasty. Now, as you all know that Rajendra Chola I, one of the very prominent ruler of this dynasty, his birth anniversary was observed in the city of Gangaikonda Cholapuram. This particular celebration was attended by Prime Minister Narendra Modi. While attending this particular session, when he was there here, in his speech, he talked about the legacy of the Chola dynasty. He talked about the legacy of the Chola dynasty. He talked about the maritime power, the naval power. Maritime means the naval power of the Chola dynasty. Remember, the Chola dynasties are actually remembered for some of the very prominent things, like for example their naval strength. उनका naval power बहुत strong था. Then we also remember them for their democracy, for the initiatives of democracy and the panchayat model of governance. ठीक है? So we will have a talk on all this thing, but they are remembered for this thing. So Prime Minister in his speech, he basically mentioned the maritime power of Chola dynasty. He talked about the grassroots democracy, that is panchayat and all those things related to Chola dynasty. He also released the commemorative coin dedicated to Rajendra Chola I, and in this particular speech, he also made an announcement that in the very future, the government will create the statue of Rajendra and Raja Chola. These are the two, again, the very prominent ruler of this Chola dynasty. Okay? So we'll have a discussion on Chola dynasty ki hai kaun si ye dynasty and what all are the important significance or important features related to this particular dynasty. Now, if you look at the graph from the 9th century to 13th century, this is the duration when we can say that the Chola dynasty actually flourished. They were there prior to this phase and even later to this phase, but this is the phase that is from the 9th century to 13th century that we can say that it was the time of the Chola dynasty, the time or the duration in which the Chola dynasty actually flourished. Now, this dynasty was actually founded by Vijayala, and some of the other rulers, the prominent rulers are Rajendra, Raja Chola and Rajendra Chola I. These are the very prominent rulers of the Chola dynasties. Okay? 9th to 13th century, this is the time when the Chola dynasty actually flourished. Now, when we talk about the Chola dynasty, the thing that directly clicks to our mind is what are the imprints of the Cholas? Why do we remember Cholas? Why do we glorify Cholas? The reason is, you will see the imprints of the Cholas logo ka imprints in the southern part of India, right? In southern India, you will clearly see the imprints of the Cholas. And apart from this, in Sri Lanka, they have their imprint or they had the expansion in Sri Lanka as well. And in the some part of the Southeast Asia, right? Then second, they introduced a system. This is the system called Kuda Volai system. अब ये Kuda Volai system क्या था? Using the palm leaves, under this system, palm leaves के through electoral system को किया जाता था. मतलब election होता था for village headmen. So we call it as the electoral system in villages. Village के headmen को elect करने का system, and this system is called Kuda Volai system. So this system is also one of the prominent feature related to the Chola dynasty. Remember, ये वो time है जब democracy India में नहीं हुआ करती थी, लेकिन still this is the kingdom which was witnessing or which was experiencing the democracy, right? Then they also developed the decentralized administration. जैसे आज के टाइम पे we have decentralized administration. सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, देन लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी है. व्हाट इज दिस? दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखेगा इसी चोला डायनेस्टीज में. सो दे हैड द डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न, और यहाँ पर असेंबलीज हुआ करती थी, ऊर, सभा, नागरम, right? These are the different type of assemblies. Remember, इंडिया में
हम वी जनरली से कि जो रिपब्लिक का आइडिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया है, पंचायत का आइडिया है, दिस इज नॉट न्यू टू इंडिया। हम एंशंट इंडिया में रिपब्लिक के आइडिया को ट्रेस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 16 महाजनपद, उसमें एक महाजनपद हुआ करती थी वज्जी नाम की, वज्जी महाजनपद, उसमें रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट होता था, राइट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वी हैव चोलास, यहां पर आपको डेमोक्रेसी दिखता है। अगर हम पंचायत की बात करेंगे तो वी कैन से दैट पंचायत इज नॉट न्यू टू इंडिया, वी हैव एक्सपीरियंस्ड द पंचायत इन द मिडाइवल पीरियड, द अर्ली मिडाइवल पीरियड व्हेन नोवेयर the panchayat was there, no concept of panchayat was not there. So even at that time we had this particular thing of decentralized panchayat and all those things, ठीक है। Now these people are also remembered for maintaining the land record. They used to do a land survey, जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट करती है, जो आज के टाइम का ये जो फीचर्स है वो सब उस समय they used to follow, land revenue they used to maintain, right? Now चोलाज लोगों का फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो लाइक स्पेसिफिकली अगर हम राजेंद्र चोला वन की बात करें तो राजेंद्र चोला वन ही लेड द एक्सपीडिशन टू across the Bay of Bengal, like for example to Sri Lanka, Maldives and Sumatra. सुमात्रा को उस समय श्री विजया कहा जाता था, ठीक है। So these are the places जहां पर उन्होंने एक्सपीडिशन किया था, एरिया अपने कब्जे में भी रखा था, राइट। Now he maintained a diplomatic relation with China. उस समय एट द टाइम ऑफ राजेंद्र चोला वन, चाइना में सोंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, तो ही हैड अ गुड रिलेशन विद सोंग डायनेस्टी, दैट इज विद चाइना, राइट। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी द कल्चरल इन्फ्लुएंस। चोलाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर doing the cultural influence or creating the cultural influence in Southeast Asia, right? For example, spread of cultural influence via temple building tradition in the region like Angkor Wat. आपको पता होगा, like for example Angkor Wat, Angkor Wat कहाँ पर है? तो this is in Cambodia, कंबोडिया, ठीक है जी, कंबोडिया में, कंबोडिया में अंकोर वाट जगह है, यहां पर एक टेंपल बनाया गया है। दिस इज द लार्जेस्ट हिंदू टेंपल, लार्जेस्ट हिंदू टेंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड ये टेंपल है, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो अंकोर वाट का जो टेंपल है ये चोलाज ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था सूर्यवर्मन सेकेंड, ठीक है, ऑफ कामेर डायनेस्टी, राइट। बट ये क्यों उन्होंने बनाया? क्योंकि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन, साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ temple making, right? And hence he created this particular, he built this particular temple. This is one of the very prominent temple, Angkor Wat, Cambodia का, ठीक है। Now this is why, this is the result of the influence, the cultural influence that the Cholas created in the Southeast Asia, right? Now अगर आप चोलास लोगों का कल्चरल या रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें तो रिमेंबर दे सपोर्टेड शैविज्म, दे सपोर्टेड वैष्णविज्म। उन्होंने के टाइम पर जो टेंपल बनता था, यानी साउथ इंडिया में जो टेंपल होता था, वाज एक्चुअली कंसीडर्ड टू बी दी सेंटर ऑफ एजुकेशन, जुडिशरी एंड इकोनॉमिक्स। टेंपल के बाजू बाजू में ही एक टेंपल है, टेंपल के यहाँ पर ही पूरा एक हब क्रिएट होता था। टेंपल एक इकोनॉमिक हब जैसा, इकोनॉमिक सेंटर जैसा रोल प्ले करता था, राइट, जुडिशियल सेंटर, एजुकेशनल सेंटर जैसा रोल प्ले करता था। चोलाज ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड द लिटरेरी फिगर्स, उस समय के कुछ बहुत ही विद्वान लोग, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंबन की रामायण साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, कंबन रामायण के नाम से। कंबन भी इन्हीं के टाइम के है, चोलाज लोगों के टाइम पे, एंड चोलाज यूज्ड टू पेट्रोनाइज कंबन, चोलाज यूज्ड टू पेट्रोनाइज जयम कोंडर, राइट, जयम कोंडर। नाउ दे ऑल्सो परफेक्टेड, जो ड्रेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है इसको चोलाज लोगों ने परफेक्ट किया। लाइक इसके अलावा जो मूर्ति बनाई जाती थी ब्रॉन्ज, यानी कांस्य की मूर्ति, ब्रॉन्ज की मूर्ति, वो किस टेक्निक के ऊपर बेस्ड है? लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बेसिस पर है, और वो चोलाज के टाइम पर उसे और परफेक्ट किया गया और उसे मैच्योर बनाया गया। द आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ द चोलाज लाइक बृहदेश्वर टेम्पल है, then we have the city of Gangaikonda Cholapuram. All these are the iconic development of the Cholas, for which the Cholas are remembered and will always be remembered, right?
चोलास लोगों को अगर आज के करंट मोमेंट में आप उसको लिंक करके देखेंगे तो दे हैव द रिलेवेंस इन द मॉडर्न टाइम एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल चोलास लोगों का जो विलेज पंचायत मॉडल था, आज आप देखेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में, वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उससे हम लिंक करते हैं। इसीलिए भी से कि जो पंचायत का सिस्टम, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट वी एक्सपीरियंस और दैट वी हैव इन द प्रेजेंट टाइम हैव इट्स लिंक with the panchayat model of the cholas. So hence this is the reason we say that this is not the new to India. India has already experienced the local governance, and that time that is in the cholas dynasty or during the chola time. ठीक है। और चोलास कब के हैं? तो ये अर्ली मिडाइवल टाइम के है, अर्ली मिडाइवल। याद रखिएगा चोलास की जब हम बात करते हैं तो दो है, एक है एंशियंट इंडिया के टाइम पर चोला, चेरा, पांड्या, संगम डायनेस्टी एंड ऑल दोस थिंग, और एक चोलास दूसरा फेज है। ये दोनों ही तमिलनाडु वाले लोकेशन में आते हैं, लेकिन एक सेकंड फेज ऑफ चोलास जो है ये अर्ली मिडाइवल पीरियड का है, अर्ली मिडाइवल। तो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड फेज वाला अर्ली मिडाइवल वाले टाइम के चोलास लोगों की, ठीक है। नाउ दे आल्सो हैड द लिंक विद साउथ ईस्ट एशिया। हमें पता है कि दे लेफ्ट देयर इम्प्रिंट इन साउथ ईस्ट एशिया, वहां तक का इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। आज वही काम आता है इंडिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। चोलास दे हैड अ लिंक विथ South East Asia, and now the current government wants to build up the relation with the South East Asia, and in this particular effort we generally quote the Cholas कि चोलास लोगों का वहाँ पर रिलेशन था, तो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है, करंट मोमेंट में भी हमें रिलेशनशिप को और बिल्डअप करना चाहिए। तो चोलास का लिंक, चोलास का इन्फ्लुएंस आज के भी टाइम पर यू कैन सी इन द प्रेजेंट डे मोमेंट ऑफ द इन द एफर्ट्स ऑफ क्रिएटिंग द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन रिलेशनशिप, दैट इज मैच्योराइजिंग द इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें बृहदेश्वर टेम्पल जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द चोलास, राइट। वी ऑल नो चोलास लोग का नेवल विजन बहुत एडवांस था, नेवल विजन, नेवी बहुत स्ट्रांग थी, मैरीटाइम के बारे में दे यूज्ड टू वर्क ऑन दिस, राइट। और ये रिसोनेट करता है इंडिया के करंट टाइम के ब्लू इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जिसमें इंडिया अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात करता है, मैरीटाइम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात करता है। तो दिस ऑल हैज इट्स लिंक विद द चोलास। सो आज के टाइम पे हम बहुत सारा जो काम कर रहे हैं उसका रेलेवेंस आपको कहीं ना कहीं, उसका रिसोनेशन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा इन दिस पर्टिकुलर चोलास लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में, चोलास लोगों के इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटी में, राइट। एंड दैट इज द रीजन इवन इन द प्रेजेंट टाइम वी से कि चोलास आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, उनकी बहुत प्रोमिनेंस है और आज के भी टाइम पर हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं। तो इसी चोला डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर राजेंद्र चोला वन की बर्थ एनिवर्सरी गंगाईकोंडा चोलापुरम में मनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री इसको अटेंड किए एंड ही टॉक्ड अबाउट दी चोलास लिगेसी आपको समझ में आ गया कैसे, एंड देन ही टॉक्ड अबाउट मैरीटाइम पावर, डेमोक्रेसी एंड ऑल दोस थिंग। और ये भी कहा है कि हम फ्यूचर में स्टैच्यू बनाने वाले हैं राजेंद्र एज वेल एज राजा चोला के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज this particular dynasty all about, why they are relevant in the present time, and why do we study the Chola dynasty. This is particularly one of the very important dynasty of medieval India. This is one of the very important dynasty and kingdom of South India. I hope everything is clear to you. If you find anything difficult to understand, do write in the comment section. We will get back to you. Till then, goodbye, take care, thank you.